Chapter 1, Nutrition in Plants. Living organisms such as plants and animals survive on food. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए. The food gives them the energy to perform several activities in their life and helps in their growth. फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे वो लाइफ प्रोसेसेस या डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जैसे कि ब्रीदिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड इवन वॉकिंग एंड रनिंग कर सके, और फूड ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? Certain substances are present in food that help in the survival of an organism. These special substances are called nutrients. फूड में कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी हैं. उन सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. एंड एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा. This is a chart of nutrients that are important for growth and survival for humans as well as for other living organisms. As we know, nutrients consist of carbohydrate, fats, minerals, protein and vitamins. इनमें से 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एनर्जी ऑब्टेन करती है. शुगर, स्टार्च और फाइबर्स जो भी फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं. इसके अलावा ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट. कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी डाइट. Proteins are also an essential nutrient for the human body. They are formed by amino acids. प्रोटीन्स हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, मसल्स, बोन्स, स्किन, हेयर एक्सेट्रा. इसलिए प्रोटीन्स बहुत एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं. फूड दैट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंक्लूड्स एग्स, फिश, सी फूड, किडनी बीन्स, चिकपीस एक्सेट्रा. Fats are also one of the 3 main macronutrient groups in human diet, along with carbohydrate and proteins. फैट्स ग्रोथ के साथ साथ स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. फैट्स में क्या क्या आता है? बटर, घी, कुकिंग ऑयल, फ्राइड फूड एक्सेट्रा. इन सब में फैट प्रेजेंट होता है. विटामिन्स भी उन सब्सटेंसेस में आते हैं जो बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए. Vitamins like vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, E and vitamin K are essential for our body. Common food that includes vitamins are green vegetables, fruits, fish, nuts, etc. Minerals. ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है डेवलप होने के लिए. The minerals that are important for our health are calcium, sodium, potassium, iron, zinc, iodine, etc. And the common food that includes minerals are cereals, milk, and other dairy products. Some organisms like plants synthesize their food by themselves. कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. एंड द प्रोसेस बाय विच दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. While others such as animals depend upon the plants and other animals for their food. और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, जैसे कि प्लांट्स पे, दूसरे एनिमल्स पे या फिर दोनों पे. दे आर कॉल्ड heterotrophs. So autotrophic organisms can prepare their own food, example plants, whereas heterotrophic organisms cannot prepare their own food, example animals. Now
How do plants prepare their own food? Plants prepare their own food with the help of certain raw materials that they gather from their surroundings. Plants अपनी surroundings से कुछ raw materials जैसे कि water, carbon dioxide, sunlight, minerals और chlorophyll लेते हैं जो कि photosynthesis के लिए बहुत important है. Now what is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which plants prepare their own food. During photosynthesis, green plants transform light energy into chemical energy. Photosynthesis में green plants light energy को chemical energy में change कर देते हैं, transform कर देते हैं. Now, as you can see in the diagram, the plants drop the water through its roots. प्लांट ने वाटर और मिनरल्स अपनी रूट में से लिए और कार्बन डाइऑक्साइड ली एटमॉस्फेयर या फिर एयर में से. एंड दे ऑल्सो ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. द प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ द सनलाइट टू टर्न वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन. प्लांट्स सन से ली हुई एनर्जी को यूज करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं. देन द प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर. और फिर ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में और जो शुगर बचता है प्लांट्स के पास वो उनकी ग्रोथ के लिए वो यूज़ कर लेते हैं. अब हमने ये तो देख लिया कि फूड प्लांट्स में कैसे बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. लेकिन प्लांट्स में खाना कहाँ पर और कौन से पार्ट में बनता है? वेयर इज़ द फूड मेड इन प्लांट्स? प्लांट्स का खाना उनकी लीव्स में बनता है, इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं. लीव्स आर ऑल्सो नोन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स एज दे आर द प्लेसेस वेयर फूड इज prepared. Different parts of the plants like roots gather the raw material from the environment and then transfer them to the leaves where photosynthesis takes place. Plants के अलग अलग parts जैसे कि roots raw materials को gather करते हैं और उन्हें leaves में transfer करते हैं photosynthesis की process के लिए. The roots of the plants absorb the water and minerals of the soil and then transports them to the leaves with stems and branches. इसी तरह roots water और minerals को भी absorb करते हैं soil में से और stem और branches के through leaves तक पहुंचाते हैं. Transport of water and minerals in plants. अब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है? जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, रूट्स ने सॉइल में से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करे. अब स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू वो वाटर और मिनरल्स लीव्स तक जाते हैं और जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बना था वो ग्रोइंग बर्ड्स में चला जाता है. जो बड होती है जो कि ग्रो कर रही होती है फ्लावर में, उसमें वो ग्लूकोज चला जाता है और उनकी ग्रोथ में वो हेल्प करता है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट स्टोमेटा एंड अदर मोड्स इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. थैंक यू.